क्या चीज थी परम्यूटेशन? परम्यूटेशन क्या चीज थी? n में से r अरेंजमेंट, r पोजीशंस है, n टोटल आपके पास चीजें हैं, ठीक है? So there are how many arrangements possible? n times n minus 1 times n minus 2 times n minus r plus 1. ठीक है? And the shortcut to write this thing is n factorial over n minus r. And it is denoted by r or nbr. Okay? Alright? And what is combination? Unordered chain. Okay? Another way to say this is that I am selecting a stack. Okay? Whenever you are selecting a stack or a group, then there is no order. Does it make sense? ठीक है? अब वो किसके बराबर होता है? वो हमने देखा था कि डिवीजन रूल करके हमने डिफाइन किया था कि NCR is essentially whatever is NPR divided by उस R के ग्रुप की जितनी भी possible arrangements बनती हैं उनसे आप डिवाइड कर देंगे, which means P R R. Okay? इन R factorial से आप डिवाइड कर देंगे. Does it make sense? ठीक है? So that's what you do. Make sense? All right? Actually इसी के थ्रू हम combinations permutations भी डिफाइन कर सकते हैं. Permutation is कि जितने possible आप subsets बनते हैं उसको आप R factorial से that's also the same thing. ठीक है? All right? और another way to write this is n factorial or n minus r factorial permutations था divided by r factorial. Okay? Why are we divided by r factorial? Because we want to cancel out overcome. Excellent. G. And with the definition of NCR, which is subsets of size, how much? R. I can actually conclude this thing. K NC0 plus NC1 plus NC2 plus NCn minus 2 n minus 1 and NCn. That is actually all possible subsets possible. Okay? That is nothing but equal to what? Power set का size. और power set का size हमें पता है किसके बराबर होता है? 2 power n. We know that this quantity is actually equal to what? 2 power n. Okay? All right. Then we saw combinatorial argument. Okay? What was combinatorial argument? It is a counting argument. ठीक है? जिसमें हम क्या करते हैं? एक थीटा के हम डबल काउंटिंग के थ्रू प्रूव करते हैं. डबल काउंटिंग का मतलब क्या है? कि आप लेफ्ट साइड का एक आर्गुमेंट देते हैं और राइट साइड में उसी को एक और तरीके से काउंट करते हैं. ठीक है? और दोनों का आंसर सेम होता है. ठीक है? So instead of taking algebraic proof, what we do is कि हम क्या करते हैं? हम combinatorial argument, हम डबल काउंटिंग argument करते हैं. ठीक है? हम लेफ्ट हैंड साइड का एक आर्गुमेंट बताते हैं और उसी कोरस्पॉन्डिंग एक और तरीके से स्टोरी बताते हैं जो कि सेम चीज की स्टोरी होती है. ठीक है? So that is called double counting. And there is इसी का एक और combinatorial proof होता है bijection से प्रूव करते हैं. What is bijection? इसमें हम क्या करते हैं? 1-to-1 correspondence के थ्रू बताते हैं. ठीक है? Alright? हमने इसकी एग्जांपल से पहले ये देखी. That was bijection के थ्रू. कि NCR is actually equal to NCn minus R. Why? हमने जितने हम R का जब सबसेट सेलेक्ट करते हैं तो हम कितने का लीव करते हैं? n minus r. So every possibility taken as a selection, there is another selection with जो कि हम select नहीं कर रहे, and that they have 1-to-1 correspondence. Does it make sense? So this was combinatorial also. ठीक है? हमने पहली जो proof हमने combinatorial में पढ़ा था वो ये था. Does it make sense? Without using algebra. ठीक है? by the way algebra से भी आप prove कर सकते हैं, but I don't want to do that. ठीक है? Alright? Counting actually सबसे ज़्यादा आपको यही चीज़ हेल्प करती है. जी. उसके बाद हमने एक और
कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट देखा था, which was Pascal identity, ठीक है? इसे हमने कैसे प्रूव किया था? एक सेलेक्ट करके हमने कहा ये व्हाट इज दिस लेफ्ट क्वांटिटी? लेफ्ट क्वांटिटी इज कि आपके पास n लोग हैं और n लोगों में से आपने k का सेट सेलेक्ट करना है, k की टीम सेलेक्ट करनी है, ओके? और उसे हमने क्या किया था कि हमने एक बंदे को सामने रखा और हमने कहा भाई लेट्स काउंट दोस जिसमें ये बंदा शामिल है। ये बंदा शामिल है वो कितनी टीम्स हो सकती हैं? वो होंगी, बाकी कितने रह गए? n-1, ठीक है? और अब मुझे चूज कितने करने हैं? टीम तो मैंने क्या की करनी थी, तो k में से एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बंदे को पहले सेट करना है। बट दीज आर नॉट द ओनली टीम्स ऑफ साइज k. देयर कुड बी दोस टीम्स जिनमें वो जो एलिमेंट हमने बाहर निकाला वो शामिल था ही नहीं। अब लेट्स से वो काउंट कर लेते हैं, वो कितनी होगी? n-1 में से k एलिमेंट्स हमें चूज कर लेते हैं, ओके? सो दीज विल बी माय टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ साइज k, okay, which is exactly the same quantity जो कि मैंने पहले लेफ्ट साइड पे काउंट किया, ठीक है? ऑलराइट, दैट्स व्हाट कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट मीन, ओके? फिर हमने देखा था कि ये पास्कल ट्रायंगल एक्चुअली बड़ी मजेदार जगह पर आती है और हमने ये एक्चुअली देखा था कि जो पॉलिनोमियल्स की यानी अगर हम बायनोमियल एक्सपेंशन करें, ठीक है, x plus y to the power n, तो उसके जो कोएफिशिएंट्स आते हैं वो कोएफिशिएंट्स एक्चुअली बता रहे होते हैं क्या? वो एग्जैक्टली बता रहे होते हैं कि कोएफिशिएंट्स आर एक्चुअली एग्जैक्टली कॉम्बिनेशंस या आपने कितने एक्सेस सेलेक्ट किए, ओके? ऑलराइट, गुड। तो अगर आप देखें, आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन की हमने एक्सपेंशन की थी, तो क्या होता है? x plus y टाइम x टाइम प्लस y, ये चीज होती है ना? तो x पावर 6 कैसे कैलकुलेट होगा? x की पावर 6 कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे भी x सेलेक्ट हुआ, जैसे भी x सेलेक्ट हुआ, ठीक है? तो 6 प्लेसेस और 6 जगह पर ही x सेलेक्ट हुआ है, तो 6 choose 6, ओके? व्हाट अबाउट दिस x to the power 5? x to the power 5 कोएफिशिएंट क्या होंगे? 6 प्लेसेस में से 5 मैंने x से सेलेक्ट किया, तो बाकी कितनी प्लेस रहेगी? बाकी एक प्लेस रहेगी, 1 होता है सेलेक्ट हुआ, ठीक है? ऑलराइट, x की पावर 5 और यहाँ पर y आएगा, ठीक है? ऑलराइट, व्हाट अबाउट x की पावर 4y? ये क्या हो जाएगा? 6c4, ओके? डज इट मेक सेंस? और एक्चुअली जब आप x सेलेक्ट कर लेते हैं तो कोई भी x की 4 चॉइसेस जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर y फिक्स हो जाता है, ठीक है ना? तो जैसे अपना नंबर आपको कहा जाए 2 0 और 1 बिट है, तो मैं क्या काउंट करना चाहूंगा कि पहली सिर्फ 2 बिट्स निकालनी है, कितनी निकालनी है कि जब 2 बिट्स पे 1 आ रहा है, तो अगर आपने पहली जगह पर 1 रख दिया, दूसरी जगह पर 1 रख दिया, तो आप दोबारा 1 रख सकते हैं। तो अब आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी, सारी जीरोस रखी जाएगी। तो अगर आपने 4 एक्सेस सेलेक्ट कर लिए हैं तो आपके पास चॉइसेस है कि इन 6 में से आप ये 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? पर जब ये 4 सेलेक्ट हो गए तो ये दोनों क्या सेलेक्ट हो गए? y ही सेलेक्ट हो गए, तो you have only one option left, because हम x to the power 4 वाले कोएफिशिएंट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, y स्क्वायर रहेगा, ठीक है? y अगर ये 6 हो, मैं ये y 1 होगा, इसी तरह आप देखें तो what about x की पावर 0 y की पावर 6? That means कि आपने कोई भी x सेलेक्ट नहीं किया, बस नहीं, ठीक है? That lead us, अच्छा by the way, so can you tell me कि what is x to the power? इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? अगर मैं x plus y की पावर n की बात करता हूँ, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? n choose r, okay? Or I can also say n choose n minus r, because हमें वो पता है कि वो दोनों बराबर होते हैं, okay? Yes, all right. Then we saw this binomial expansion, okay? What was this binomial expansion? हमने exactly जो भी ड्राइव किया है, कि this means कि actually इसको अगर मैं expand करूँ तो यहाँ पे कोएफिशिएंट आता है n choose 0, this is n choose 1, this is n choose
2 से ये n choose n minus 1 होगा और ये n choose n होगा, ठीक है। बाय द वे ये जो एक्सपेंशन कर रहा है उसमें ये y के हिसाब से निकाल रहा है, ठीक है। मैंने y कोई भी चूज नहीं किया, ठीक है। मैं यहाँ पर n choose n और n choose n minus 1 से भी कर सकता हूँ, जो मर्जी कर, ठीक है। ऑलराइट, बाय द वे कैन यू सी कि ये जो y जब आप क्यूब की एक्सपेंशन करते हैं या 4 की एक्सपेंशन करते हैं पावर होल पावर 4 की, तो y it is always palindromic, क्यों palindromic होती है? वो इसी वजह से होती है because NCR is actually equal to n, ठीक है। तो हमेशा palindromic बढ़ती है फिर उसी से, ठीक है। Alright, और फिर हमने इसकी एप्लीकेशन देखी थी कि there is a very trivial way, a corollary, there is a very easy corollary of binomial expansion, और वो ये है कि now I can easily prove कि my total number of subsets are equal to root the power n. How do I do that? कि अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, y की जगह 1 पुट करता हूँ, तो ये सारे x और y की पावर जो होगी वो क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। फिर ये सिर्फ कोएफिशिएंट्स बाकी बच जाएंगे। So all coefficients addition will lead to the power n. Okay? फिर हमने एक और भी इसकी कैटेगरी देखी थी और वो क्या थी कि all evens sum coefficients का sum और all odds का sum ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। और वो हमने कैसे प्रूव किया था कि हमने x को 1 अज्यूम किया और y को -1 अज्यूम किया, तो वो क्या होता है? ये 0 हो जाता है। फिर ऑड पावर्स जो होती हैं वो हमारी नेगेटिव में आ जाती हैं और जो इवन्स वाले हैं वो हमारे क्या आ जाते हैं? वो पॉजिटिव में आ जाते हैं। तो नेगेटिव वालों को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो वो ये हमारा ये सिचुएशन है, ठीक है। हमने देखा था कि इवन्स कोएफिशिएंट्स को ऐड करो और ऑड कोएफिशिएंट्स को ऐड करो तो वो दोनों के दोनों हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। And then we saw some more examples of combinatorial proofs. Okay? You remember what was this? Please, बताएं मुझे क्या चीज़ थी? Please discuss करें मुझे आप discuss करेंगे क्या चीज़ थी? How do we prove this? इसमें से 15 हो गए ना, अब 15 में से 10 देखो जो हाँ भाई अंदर ये क्या चीज़ ये ना अगर 30 में से 15 को दोनों सेट करो और 15 में से आगे 11 को सेट करो। शाबाश, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? क्या आपने 30 में से 11 की टीम सेलेक्ट कर ली
और 11 की टीम है उसको निकाल दो, जब हमने 11 बंदे आप सेट कर लिए उनको भी निकाल दो, आपको हुआ कि 15 बंदे टोटल है। बाकी अब हमने पता लगा सेलेक्ट करने में, ठीक है, तो वो बाकी मुझे बाकी फिर मैं 4 और सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो कितना सेलेक्ट करते हैं वो उन 11 को हटा दो। तो इट्स लाइक आपने एक स्क्वाड सेलेक्ट किया है 15 का, ठीक है, तो n लोगों में से 15 का आपने स्क्वाड सेलेक्ट किया है, फिर उनमें से वो है कि कितना को आप खिला सकते हैं, तो 11 को आप खिला सकते हैं, 11 की अपनी हो सकती है आर चूज कितने का सबसे आप खिला सकते हैं बस में। और फिर आप कहते हैं भाई हमने 11 लोग तो पहले फाइनल कर लेंगे, ये हमारे खेलेंगे, ठीक है, और फिर हमारे पास हो सकता है कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो हमें वो 15 कंप्लीट करने में स्क्वाड में 15 को देना होता है, तो दैट मींस कि हमें क्या करना पड़ेगा कि n माइनस k में से जो हमें सेलेक्ट करने को निकाल दो, और अब कितने और सेलेक्ट करने हैं, हमें 4 और सेलेक्ट करने हैं, तो वो r माइनस k, ठीक, दैट मींस दिस, ओके, शाबाश। फिर हमने ये चीज देखी थी, वंडर मॉन्डेज आइडेंटिटी। सारे ने क्या अपनी क्लास में क्या किया था कि ना, मुझे कहता है इसका यार नाम बड़ा मुश्किल है, तो जिसने इसका मुझे प्रूफ दिया मैं उसके नाम पे इसका नाम इस इक्वालिटी आइडेंटिटी का नाम रखता हूं, तो एक क्लास में ने आंसर दे दिया, उसका नाम बड़ा मुश्किल था, तो अच्छा बताओ ये क्या है। हां भाई इसका क्या प्रूफ था, दो सेट्स हैं उनमें से चूज करना है, 2 सेट्स हैं और उनमें से हमने r चूज करना है, ओके, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इनको हम कहते हैं ये बॉयज एंड गर्ल्स है, तो n नंबर ऑफ बॉयज है, n नंबर ऑफ गर्ल्स है, टोटल टीम सेलेक्ट करनी है ये r लोग, ठीक है, तो ये टोटल टीम कैसे हो सकती है, फिलहाल मैं अपने सबको डिस्टिंग्विश कर देता हूं, मैं यानी कि मैं बॉयज गर्ल में कोई तफरीक नहीं करता, मैंने बस ये 11 लोग सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हाँ भाई अब मैं इसी चीज को दोबारा दिखाता हूं, और वो ये है कि m फॉर एग्जांपल बॉयज थे और n फॉर एग्जांपल गर्ल्स थे, तो एक तरीका ये है कि मैं बॉयज में से कोई भी सिलेक्ट ना करूं, ठीक है, और गर्ल्स में से सारे सेलेक्ट करूं, बट इज दिस द ओनली वे, ओके, बट व्हाई आई हैव मल्टीप्लाइड, उसकी सिलेक्शन के लिए उसकी मैटर करती है, उसकी सारी सिलेक्शन, दिस इज लाइक प्रोडक्ट रूल, इट्स अ समेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, बस नहीं, उसकी एक सिलेक्शन के लिए इनकी सारी चेंज हो सकती है, ठीक है, शाबाश, इट्स लाइक सो एक का के बॉय में से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर बॉय में से एक सिलेक्ट हुआ और बाकी सारी गर्ल्स सिलेक्ट हुई, दूसरा ये है कि फिर 2 सिलेक्ट हुए और फिर उनमें से 2 कम सिलेक्ट हुए, ठीक है, और इस तरह चलते करते सारे ही आपने बॉय सिलेक्ट कर लिया और गर्ल्स में से कोई भी सिलेक्ट, does it make sense, ठीक है, so that was the story of combinatorial proof, the test, and then we proved this thing, so this was a very nice non-trivial proof, no, this was also easy, now this was the same example, हाँ जी, फिर हमने छोटी सी corollary भी की थी, वो क्या था कि why this is equal, why this thing is equal to this thing, कि अगर n और m दोनों के दोनों बराबर हो, ये नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों बराबर हो, तो दिस विल बी इक्वल टू n प्लस n, व्हिच मींस 2n, और ये लेट्स से मैंने n लोग चूज करने हैं, ठीक है ना, और फिर क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू n चूज k इसमें से होगा, और दूसरा क्या होगा, वो n चूज k माइनस 1 होगा, और n चूज n माइनस k होगा, n माइनस k भी k होगा, why कौन सी इक्वालिटी जो हमने सबसे पहले वाला कॉम्बिनेटोरियल, and that's why this is actually easily derived from this thing, okay, all right, then we saw this non-trivial example, और इसका बड़ा मजेदार प्रूफ था कि why this is equal to this thing, और इसको हमने जोड़ा था किससे, bit string से, okay, what is this quantity, कि अगर आपके पास n+1 लेंथ की बिट स्ट्रिंग है, ठीक है, और आपने कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, r+1 लोगों, r+1 बिट्स को आपने 1 करना है, ठीक है, बाय द वे देयर आर हाउ मेनी, अगर मैं कहता हूं मेरे पास 8 लेंथ की बिट स्ट्रिंग है, तो कितने ऐसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई कितनी ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी जिनमें से 2 1 होंगे,
कॉम्बिनेशन निकालेंगे फिर हम जो है वो तो बस वो एक नहीं गई ठीक है सर, अब हम जो है अगले तो कितने होंगे कितने होंगे 6 into 6 नहीं रियली हाँ into 2 हाँ 8 choose 8 choose 2 what are you talking that's it yes sir. it's just 8 choose 2 it's just कि आपने 8 के ग्रुप है उनमें से 2 का सेलेक्ट करना है तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 8 choose 2 that's it आप वो जो भी सेलेक्ट करेंगे उन्हीं रिस्पोंडिंग बिट को 1 कर दें ठीक है ना this is 8 choose आंसर क्या होगा so far so good ठीक है तो अगर आपने कितनी बिट तो अगर मैं कहता हूँ कि 3 बिट्स ऐसी 8 लाइन की बिट स्ट्रिंग इसमें 3 जगह पर 1 हो वो कितनी पॉसिबिलिटी हो 8 choose 3 ठीक है ऑलराइट तो लेफ्ट साइड की स्टोरी क्या है लेफ्ट साइड स्टोरी क्या है हमने कहा इमेजिन करें कि लेट्स से कि n+1 की आपकी बिट स्ट्रिंग है ठीक है n की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर मैं 99 कह दूं तो 99 + 1 यानी 100 लेंथ की आपकी बिट स्ट्रिंग है और r की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कह दूं 9 है तो आपने 10 बिट स्ट्रिंग्स 10 बिट्स के ऊपर 1 रखना है ओके सॉरी क्या यहाँ पे नाम से निकालता ठीक है तो आप फॉर एग्जांपल n को कहते हैं कि n आपका 99 है मैं जानबूझ के 99 ले लेता कि वो 1 कर तो 100 हो और r हमारा कितना है r हमारा 9 है ताकि वो कितना हो जाएगा 10 ठीक है और n+1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ठीक है ये मैं कह रहा हूँ कि 100 की बिट स्ट्रिंग है और कितनों को हमने जगह पर 1 रखना है 10 जगह पर देयर हाउ मेनी नंबर ऑफ फेज 100 choose 10 ओके ऑलराइट अब जो राइट साइड है यहाँ पर चीज बहुत ही जबरदस्त आर्गुमेंट है ओके और वो आर्गुमेंट ये कहता है कि बुढ़ी के बताएं कि मैं सारी वो ये मेरी 100 बात है ये जो स्ट्रिंग होगी कितना लेंथ की होगी 100 लेंथ की होगी n+1 लेंथ की ठीक है अच्छा नाउ लुक एट दिस मैं एक्चुअली काउंट जो करता हूँ वो ये करता हूँ कि I will count के बिट स्ट्रिंग मैं कोई भी एक बिट स्ट्रिंग को देखता हूँ और उस बिट स्ट्रिंग में देखता हूँ कि भाई मेरा पहला 1 आया फिर कुछ जीरोस गुजरे फिर दूसरा 1 आया फिर तीसरा 1 आया फिर कहीं चौथा 1 आया ठीक है कितने 1 आने 10 1 आने ठीक है अच्छा मुझे बताओ कि जो 10 1 आने जो 10th आखिरी 1 है वो किन किन जगह पर आ सकता है आखिरी 1 यानी मैं काउंटिंग कर रहा हूँ मैं काउंटिंग ऐसे कर रहा हूँ कि मैं आखिरी 1 को देखता हूँ कि आखिरी 1 कहाँ पर आता है 10 1 आने मैं आखिरी वाले 1 की के बेस पे काउंटिंग कर रहा हूँ ठीक है 100 पे आ सकता है आखिरी वाला 100 पे आ सकता है पहला दफा क्या 99 भी आ सकता है यस सर 98 भी आ सकता है 95 भी आ सकता है 90 भी आ सकता है यस सर वो 5 भी आ सकता नो क्यों क्योंकि सर ये वो बाहर निकल जाएगा ये ना मैं तो मुझे सिखाया करता 5 क्या होंगे मुझे बता पहला आखिरी प्ले लीगल प्लेस क्या है 10 सीखी हो गया मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास 100 लेंथ की स्ट्रिंग है और 10 1 जोन है मैं आखिरी वाले 1 की बात कर रहा हूँ आखिरी 1 के लिए पहली लीगल पोजीशन क्या है 10 वो 9 नहीं हो सकता यानी ऐसा नहीं हो सकता कि 10 1 रखने और 10वां 1 जाकर 9th प्लेस पे है ये हो सकता है पूरे नहीं आते पूरे नहीं आ सकते तो 9th प्लेसेस होंगे ना फिर तो हमने तो 10 1 रखने हैं ठीक है ना तो हमारी पहली लीगल पोजीशन क्या बनती है पहली लीगल पोजीशन आपकी 10th बनती है सारे के सारे वंश पहली पोजीशन पे बिल्कुल ठीक बात ठीक है तो पहली लीगल पोजीशन ऑफ द लास्ट वन इज 10th index actually r+1 index Yes, sir. okay r+1 okay अब मैं इस बाहर now look at this हम अज्यूम करते हैं कि ये बहुत बड़ी क्यू लगी हुई है और इर्तजा शो कर रहा है कि वो हमारे लास्ट 1 की पॉसिबिलिटी है ठीक है लास्ट 1 की पॉसिबिलिटी ओके नाउ लुक एट दिस
अगर इर्तिजा तो पहली लीगल पोजीशन इर्तिजा की कौन सी है? वो 10 की है ना? 10 की है। अब अगर इर्तिजा 10th लोकेशन पर है तो बाकी 9 बिट्स जो हैं वो किन किन जगहों पर हो सकती हैं? वो 1 से लेकर 9 जगहों पर हो सकती है। ये समझ में आई बात? यानी इसका मतलब है 9 बिट्स थी और 9 की 9 बिट्स को हमने 1 करना है। That means what? That means 9 choose 9. And that means actually R choose R. ये बात समझ? क्योंकि एक सेलेक्ट हो गया हुआ है और बाकी R बिट्स रह गई हैं, which means R प्लेसेस हैं और R ही सेलेक्ट करने हैं। ये बात समझ? अब इसका हम एक आगे चलता रहेगा। ये 11 पे आ गया। ये जब 11 पे आ गया इसकी पोजीशन फिक्स हो गई। बाकी कितनी प्लेसेस बाकी रह गई पीछे? 10 प्लेसेस रह गई है, which means अब हमने क्या करना है? अब हमने R+1 में से दोबारा से कितने सेलेक्ट करने हैं? ये बात समझ? आगे जाएगा उतना जितना वो आएगा आगे जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग है उसमें से R हमें दोबारा से लिमिट बढ़ती जाएगी। ठीक? हाँ? एक जगह? हाँ, तो R+1 में से R बिट्स को बांध करना है। हाँ? +1 ऊपर कर दिया। ठीक है? तो जिसका यहाँ था 8 बिट्स थी, 2 बिट्स को बांध करना था तो 8 choose 2 है। अब R+1 बिट्स है और उनमें से R की जगह पर बांध रखना है। तो कितनी बिना वजूदी 8 choose करना है। ठीक है? Thank you. Everybody understand this thing? Now look at this. This should be trivial. This should be easy to comprehend now. कि वो कहता है n+1 में से R+1 को हमने क्या करना है? चूज करना है। ठीक है? R1 की जगह पर 1 रखना है। तो ये हमने वैसे काउंट कर लिया कि n+ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी होंगी जो लीगल स्ट्रिंग्स हो सकती है वो n+1 चूज R+1। अब मैं एक और तरीके से काउंट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब मैं देखता हूँ कि जो पहली लीगल पोजीशन है आखिरी बिट की, आखिरी 1 की, वो कौन सी होगी? R+1 होगी। लेकिन जब मैं R+1 पे इसको फिक्स कर दूंगा तो ये पहले वाली कितनी बिट्स रह जाएगी? 8 बिट्स रह जाएगी और इन R में से कितनी बिट्स को मैंने बंद करना है? R ही को बंद करना है। ठीक है ना? तो ये J = R से शुरू हुआ और R में से R ही सेलेक्ट कर। अगली दफा R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी और R+1 में से R सेलेक्ट। फिर क्या हो जाएगा? R+2। ठीक है? हर दफा मैंने सेलेक्ट R किया और ये कहां तक जाएगा? ये यहाँ पर n+1 है और इसमें एक कम तक जाना है। सॉरी, वो n+1 सबसे बड़ा रखा होगा। That's the आखिरी लीगल पोजीशन। इधर 100 के ऊपर 100 से आगे नहीं जाता। जब 100 पे जाएगा तो इसमें जो बाकी रह गए हैं वो इनमें से हमने R प्लेसेस के ऊपर दोबारा से ठीक है ना? तो बात सुनाई? Good. I think that was the hardest अच्छा अब आप तो ये करें प्लीज मुझे प्रूफ दें कि why it is so. I want the answer of this, please. जब मैं 2-1 शो कर रहा हूँ थोड़ा सा जूम आउट कर लिया ठीक इतना ज़्यादा जूम करने की जरूरत नहीं Please discussion करें please. I need noise please. कोई भी स्टोरी बनाए लेफ्ट वाली और फिर कोई भी स्टोरी बनाए राइट तो कोई उसी की स्टोरी बनानी है आपकी राइट पहले कोई भी स्टोरी बनाए लेफ्ट वाली
ये है कि जो है ना हमारे पास दो टीम है, दोनों की जो है ना 11-11 प्लेयर्स हैं और हमने ठीक है, एक इंडियन टीम है, एक पाकिस्तानी टीम है, फॉर एग्जांपल, ठीक है? हाँ जी। और हमने उन दोनों टीम के दो बंदे पकड़ के उनके आपस में मैच करवाना है डबल विकेट ठीक है, क्योंकि आपस में मैच करवाना, हमने फॉर एग्जांपल डबल विकेट की टीम भेजी है, डबल विकेट एक ही जगह को रिप्रेजेंट करने वाली टीम भेजी, ठीक है ना? और वो हमने इंडिया या पाकिस्तान से, या सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने वाले, तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है ना? आप 2 प्लेयर की टीम भेजी, ठीक है? कितनी पॉसिबिलिटीज कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? हाँ भाई, एक तरीका क्या है? लेफ्ट वाली क्या चीज होगी? एन इंडियन है, एन नहीं पाकिस्तानी है, 2 and choose 2, ये लेफ्ट क्वांटिटी है, ठीक है? 22 choose 2 हाँ, 22 choose 2, ठीक है ना? हाँ जी, आप राइट साइड की स्टोरी सुनो जी। राइट साइड की जो है ना, एक तो हमारी ये पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों प्लेयर्स ही एक टीम में से हो, पाकिस्तान की टीम में से हो, वो हो गया। दोनों एक टीम में हो, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी है, या दोनों के दोनों पाकिस्तानी होंगे, या दोनों के दोनों इंडियन होंगे। अच्छा भाई, वो कितने होंगे? जो अगर दोनों के दोनों पाकिस्तानी सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है? 11C2 प्लस, नो नॉट मल्टीप्लाई, इट हैज टू बी प्लस। ये या तो ये इंडिपेंडेंटली है, ये इसकी हर एक के लिए मैं इसकी हर एक के लिए दूंगा, ये इंडिपेंडेंट सिलेक्शन है, ये इंडिपेंडेंट सिलेक्शन है, ये बस ना एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ये हमने क्या सेलेक्ट किया है? ये हमने क्या सेलेक्ट किया? दोनों के दोनों या तो इंडियन हो, या दोनों के दोनों पाकिस्तानी हो, ठीक है? लेकिन आर दीज दी ओनली पॉसिबिलिटी? नो, क्या पॉसिबिलिटी रहती है? एक इंडियन और एक पाकिस्तानी, वो कितनी पॉसिबिलिटीज हो? सर उसमें एक अगर चूज किया है तो उसके लिए वो सारी पॉसिबिलिटीज 2 कितना? 11 choose 1 का स्क्वायर, 11 choose 1 times 11 choose 1, that's right? And that is we know, अगर मैं n choose 1 करता हूँ और n choose 1 करता हूँ, that we know is n times n, that's right? Which we know is n square. Does it make sense? ठीक है? Make sense? Please, thank you. अच्छा देखो जी जी बेटा एडिशन हम तब करते हैं, एडिशन अपनी बात सुने आप, एडिशन बेटा हम तब करते हैं जब दोनों इंडिपेंडेंट हो। फॉर एग्जांपल भाई, एक तरीका ये और एक तरीका ये। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ तुम्हें भाई एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी में 5, मैंने सफराज ने भी 5 प्रोजेक्ट दिए और सारे ने भी 5 प्रोजेक्ट दिए और आपको कहा भी एक प्रोजेक्ट चूज कर लो, या इसमें से चूज कर लो या इसमें चूज कर लो। आज बात कितने पॉसिबिलिटीज हैं? इनमें से सेलेक्ट कर ले या इसमें सेलेक्ट कर ले, 10 पॉसिबल, 5 मैंने दिए, 5 10 अब मल्टीप्लाई नहीं होता, या तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे या आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसकी हर एक के लिए इसकी हर एक को करें, ये नहीं। अगर मैं ये कह देता कि आपने 2 सेलेक्ट करना है, इधर से भी एक करना है, इधर से भी एक करना है, तो आप हो जाएगा 5 choose 1 टाइम 5 choose 1, बस ना। और यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में या तो इसमें से सारे सेलेक्ट कर ले या इसमें सेलेक्ट कर ले, और दूसरे में इंपॉर्टेंट रूल रहेगा क्योंकि या इसमें से एक सेलेक्ट करना है और इसमें से एक सेलेक्ट करना है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कुछ इस तरह की बात, ठीक है? मेक सेंस? चले आ जाए। जी अगर आपको मैं कहूं कि तुम्हारे पास एक आर लेंथ की परम्यूटेशन या स्ट्रिंग बनानी है और वो अल्फाबेट स्ट्रिंग होगी, जी आर लेंथ की स्ट्रिंग का मतलब क्या है? 26 चूज आर कब होता है? जब कोई भी लेटर रिपीट ना हो। वो कह रहा है कि एनी लेटर कैन बी रिपीटेड, ठीक है? यदि हर लेटर को मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ, तो उसकी वजह पहली प्लेस पे आना है। हाँ, आपके पास 8 प्लेसेस है जी, बताओ परम्यूटेशन नहीं होता तो 8 टाइम 26 फैक्टोरियल कहां से आई, कैसे आया, क्या होगा? पहली प्लेस में कितनी पॉसिबिलिटीज है यार, क्या होगा? 26 दूसरी प्लेस में कितनी पॉसिबिलिटी है? 26 क्या आएगा? 26
So this is called permutation with repetition. If you have r places, there are how many possible arrangements are possible? अगर हर जगह पर कितनी possibility आ सकती है? n possibility आ सकती है, n to the power r. बात सुना? अब आपकी तबीयत ठीक हो गई. आज जी ये सवाल क्या हुआ सवाल क्या? सर ये 4 पावर 4 हो नहीं कहीं भी नहीं. सर ऑर्डर में अरे मुझे सर ये एक सोचो. हाँ जी सवाल क्या है? सवाल बताओ. हाँ सर टाइप ऑफ फूड मैटर करती है. टाइप ऑफ फूड मैटर करती है. एक ही फ्रूट उठाना है एक टाइप बस. अगली दफा नहीं मुझे नहीं कहना. आपने कोई भी 4 फ्रूट उठाने. आपके पास जो कैटेगरीज है वो ये है. एप्पल उठा सकते हैं आप, ऑरेंज उठा सकते हैं और पीस उठा. सर पीसेस हाँ पीसीज क्या बोलो? हाँ हमें 4 पीस उठाने हैं. 4 फल उठाने. 4 फल का आप 4 फल आप पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है? आप एप्पल में से उठा सकते हैं, आप ऑरेंजेस में से उठा सकते हैं और आप पीस में से उठा सकते हैं. अब क्वेश्चन ये कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है? हाँ जी बताना शुरू करें. या तो आप 4 के 4 क्या करें? क्या आप 4 के 4 एप्पल उठाएं या फिर क्या करें? क्या आप 4 के 4 ऑरेंज उठाएं? या 4 के 4 But are these the only possibility? हो सकता है 3 एप्पल उठाएं और 1 ऑरेंज उठाएं. Are these the only possibility? No. 3 apple, 1 pear. 2 apple 2 oranges. 2 oranges. 2 orange 2 apple, 2 pears. 2 apple, 1 pear, 1 orange. लग होता जाएगा. Actually अगर आप देखें तो ये आंसर होता है. ठीक है? वही परेशानी हो गया. मुझे भी ऐसी परेशानी. ठीक है? मसला ये कि आपको सारी लिखनी पड़ रही है और आप यही मैं अगर 4 की जगह मैं 10 कर देता तो लाख पता जाना चाहिए. ठीक है ना? All right. But everybody understand कि ये तो I mean this is unbearable. Okay? है ना? चलो इस प्रॉब्लम के हम थोड़ी देर में वापस आते हैं. Just pause for few minutes. ये सवाल है. ठीक है? वही सवाल. How many of you see this problem is the same as previous problem? सर बस इसमें सर उसमें 3 फ्रूट्स थे. इसमें 7 मतलब इसमें 7 हो गए और आपने कितने उठाने? 5 उठाने. It's exactly the same problem. Okay? ठीक है? All right. अच्छा अब एक बात सुनो. इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ. ठीक है? अच्छा now look at this. Solution इतना खूबसूरत है ना कि मैं अगर सवाल ना आए ना तो पैसे वापस. Now look at it. समझो ये ना ये मैंने ना वो पार्टीशंस के लिए क्या किया पार्ट यानी कि ये वो आपने वो कभी किसी बड़े स्टोर में जाओ तो अगर बाप बना अगर ये पड़ा तो लेट्स से कि ये $100 के बिल हैं 50 के हैं so तो ऐसे कैटेगरी ठीक है ना. और 5 बिल्स हर कैटेगरी. हाँ सॉरी 5 बिल्स हर कैटेगरी के मेंबर्स पड़े. हाँ 5 बिल्स डोंट वरी. सर जो लास्ट इसमें 50 इसमें 1000 नोट पड़े हुए हैं. आप देखते हैं कि एटलीस्ट डोंट वरी
क्या अर्थ नहीं कि कोई खत्म हो जाएगा, खत्म होने की टेंशन ही नहीं। बाद में क्या होता है हर एक में हाँ ये हर एक में एटलीस्ट 5 से ज्यादा है, 5 चूज करने हैं ना तो 5 से ज्यादा ही है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, लेकिन खत्म नहीं होगा। लेकिन या तो हो सकता है कि सारे के सारे में एक ही चूज कर, ऑलराइट। नाउ लुक एट दिस, जब मैं काम करता हूँ, काम नहीं करता, नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल आइडिया, आई मीन अमेजिंग। अच्छा मैंने 5 बिल्स चूज करने हैं, 5 बिल्स चूज करने हैं, लेट मी डू द फॉलोइंग। 5 बिल चूज करने, ओके। अच्छा ये कितने तरह के मेरे पास कैटेगरीज है, ये 7 कैटेगरीज है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, what I do is the following. Let me place these 5 stars. Okay? अच्छा, thank you. मैंने ये 5 स्टार यहाँ पे लिखे, ठीक है? Okay. And let me do something. Okay. मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास कितने तरह के पॉसिबल नोट्स हैं? 7। मुझे कितने कट्स चाहिए इनको अलग अलग 6 चाहिए। Do you all agree? Do you all agree?